Good morning, ma'am. 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 Good morning. Can we have the cameras on, everyone? Yes, ma'am. Hmm. 1 second. Ma'am, just a minute. Beta, is there any Prince Yadav in your class? Yes, ma'am. ma'am. It's a new admission. He's a new admission. Yes, ma'am. Yes, His name ma'am. is Prince Yes, Yadav. His name is Prince Yadav. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, but he comes from another name, I think V2003, like this. Acha. Yes, ma'am. Let me see. Beta Prince, are you there in the class? Yes, ma'am. Okay, you are a new admission. Yes, ma'am. When did you take the admission, beta? How many days? Ma'am, yesterday. Yesterday only. Okay, so you Yes, are ma'am. quite new to the class, right? Yes, ma'am. So let me write your name in my register. Ma'am, Prince Yadav. Prince Yadav, right? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Just a second. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग भव्या उठ गए सो के अभी भी निन्ना आ रही है Hello, ma'am. कंप्लीटली अवेक Yes, ma'am. I'm taking bath also. I'm ready. Good, that's so nice. I doubt that everybody takes bath in the morning and takes the classes. Yes, Aman, am I right? Yes, Aman, Yes, ma'am. am I right or not? Ma'am, what you are saying, ma'am? I am saying that not everybody takes bath in the morning and takes the classes. There are very few. Ma'am, I have not taken. Ma'am, I also came in not one. Okay, I Ma'am, I understand. will take it after the classes. Ma'am, After because the it's classes been or too after late. this class, you have a 15 minutes break. You can easily take. Yes, ma'am, in that only. Okay. But ma'am, yesterday I had taken. Very good. This is what I said on, because see, depends. It takes time getting up, making your mind right. Okay. Tell me, where did we leave? Good morning, ma'am. Good morning, Tanishka. Where did we leave the previous class? Ma'am, we have done the reading till paragraph 1.1, but you didn't explain this paragraph. Okay, history, no? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. fine. The first paragraph tells you, Prince, you are from which school, beta, and how much portion you have completed, because
15th of July, we are starting with the exams, with the unit tests. So I need to know that how much you have covered in your previous class, previous school from where you are coming. मैम छंगामल मॉन्टेसरी स्कूल Okay, where is it? फरीदपुर Okay, so how many chapters you have completed in geography and history? मैम 2 2 chapters. Okay, work is also done in the notebook. नो मैम You need to ensure you're writing written work also in the notebooks, beta. Fine. Slowly, Yes, Ma'am, ma'am. actually, I want to ask you something. start completing your work as well. Okay. And what about history? मैम कोचिंग पढ़ते थे मैम, वहां सर ने अभी थोड़ी दिनों पहले ही स्टार्ट किया था मैम। History. नो मैम। Then क्या ज्योग्राफी की हिस्ट्री क्या स्टार्ट करा था कोचिंग में अभी आपने बेटा? जियोग्राफी जियोग्राफी ज्योग्राफी। तो आप Yes, क्लासेस नहीं ले रहे थे वहां पे फरीदपुर में? नो मैम, मैम वहां मैम 8 तक ही था वो स्कूल। अच्छा, 8th तक ही था। ओके, यस मैम। फाइन 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 फाइन, राइट। व्हाट अबाउट अमन? अमन माय ब्रदर। हाँ, अमन इज योर ब्रदर? यस मैम। अच्छा, यू बोथ आर ब्रदर्स? यस मैम। नो मैम। देन नो मैम, मैम मेरा बड़ा भाई है मैम, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अरे, I'm talking about Aman Yadav who is in the class. Okay, fine. Aman, Sorry. you, हाँ ना, it's okay बेटा, confusion किसी को भी हो सकता है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ जी, ये हमें बताइए कि अमन आपका कहाँ तक कवर हो गया है बच्चे? मैम जियोग्राफी। हाँ। जियोग्राफी मैम आपने नोट्स वर्क भेजा था, हाँ जी, सेंड किया सब वो हाँ। मैम वो कर दिया 2nd चैप्टर तक। अच्छा, तो वो कैसे रिटन, हैंड रिटन करा है कि आपने पेपर चिपकाए हैं? रिटर्न किया। वेरी गुड, चलिए दैट्स रियली वेरी नाइस। तो बेटा अमन, प्रिंस ऐसा है, आपको भी हम वो नोट्स भेज देंगे 1st और 2nd चैप्टर के, बट आप ये इंश्योर करेंगे कि वो आप हैंड रिटन वर्क करेंगे, आप कोई फोटोकॉपी नहीं लगाएंगे उसकी, ठीक है? ओके ओके मैम। चलिए, फाइन फाइन। मैम एक चीज पूछनी थी मैम। यस, आस्क। मैम जैसे मैम अभी ज्यादा वर्क पे ना फोकस करके मैम अभी टेस्ट पे फोकस देंगे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे मैम मैंने कभी कहा ही नहीं कि आप अभी लिखो, मैंने तो यही बात बोली कि एग्जाम, जो चैप्टर आपका एग्जाम में आना है उसको अगर आप नोटबुक में करते हो तो आपकी बोथ वेज होगा, लर्निंग भी हो जाएगी, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बाकी चैप्टर्स आप यूनिट टेस्ट के बाद करिएगा, ठीक है? बट मेक श्योर दैट यू डू देम इन द नोटबुक, डोंट थिंक दैट टेस्ट ओवर हो गया, काम खत्म हो गया, ठीक है? यस मैम। तो उसके लिए आप परेशान मत हो, ये चीज तो हम, आई नेवर प्रेशराइज, आई अंडरस्टैंड प्रेशर ऑफ टेस्ट एंड एवरीथिंग, राइट? चलिए, so first part we are doing, okay? See the opening of the chapter. Opening of the chapter means the beginning, the first page tells you about the they have taken you back to the French Revolution, right? They are talking about the situation, the time when French Revolution did not happen in Europe. See, in this these two, 3 pages that you have, they are collectively talking about the conditions in Europe, right? So we will relate everything to Europe, not to a particular country. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. So see, in Europe, before, you know, the French Revolution, before French Revolution, the setup was such that there was a, you know, estates were there, and the aristocracy which was there, autocracy, that is the king, the monarch, and the church that were there, they were more powerful, and maximum control of the country's economy was in the hands of these people. Throughout Europe the system was like this. हम ये नहीं कह सकते केवल फ्रांस में ऐसा कुछ था, but throughout Europe the condition was like this, that the kings, those who were there, हमने आपको ये बताया था शायद कि जो king था
पूरा जो हमारा जो यूरोप की अगर हम बात करते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, देयर वाज यू नो एस्टेट्स वर देयर, ओल्ड रिजीम था, सोसाइटी के डिविजन्स हो रखे थे, थर्ड एस्टेट जो थी वो टैक्सेस पे करती थी, और सब जगह, केवल फ्रांस में ही नहीं बेटा, ये थ्रू आउट यूरोप दिस वाज द कंडीशन. तो Ma'am, जब we are studying the first or second chapter? we are doing the second chapter beta, Okay, Yes, ma'am. but in second chapter the opening paragraphs that you have of the conditions of the society setup of Europe before and after the French Revolution, right? Okay, ma'am. Yes, ma'am. So when French Revolution happened, everything changed. Now how it changed, like you know, new ideas came up and societal changes were there. Societal changes का मतलब क्या था? ये estates जो है ये खत्म हो गया था. Privileges जो दिए जाते थे by birth, that was also not given now. ठीक है? ये हुआ कि जो डिजर्विंग है, हाँ, जो डिजर्विंग है वही, उसी को सब कुछ मिलेगा. जो डिजर्विंग नहीं है will not be you know spoon feeded. आप मेहनत करोगे, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा. If you are not putting up labor, if you are not working hard, you will not get anything. तो ये यहाँ पे क्या सीधा सीधा सा फंडा ये था कि आप काम करोगे, आपको उसका फ्रूट्स मिलेंगे. तो होते हैं ना, जो आपने मेहनत करी, आप अपनी मेहनत का फल खाओगे. तो वहां पे भी एग्जैक्टली इसी तरीके का कुछ चेंजेस जो थे that were taking place in whole of Europe. Am I clear? Yes, ma'am. Okay, with Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. with the French Revolution, what happened? Rehan Ali, are you there? Rehan Ali? Rehan, are you there? Yes, ma'am. Rehan, I cannot hear you, beta. Are you there? Yes, ma'am. Please show me your, open your camera and show me. Do you have the book with you or not? Open your camera, quick. Rehan? ओके, चलिए, फाइन, इतना क्लियर हुआ. अब आप आ जाओ अबाउट दी डिफरेंट थॉट ऑफ स्कूल्स. जैसे जब सोसाइटी में चेंजेस आते हैं तो अलग अलग लोग अपनी अपनी राय पेश करते हैं, बताते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. तो पूरे यूरोप में उस टाइम पे 3 ग्रुप्स जो थे वो निकल के आए. एंड ये जो ग्रुप्स थे, दे हैड डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट माइंडसेट, एंड दे हैड डिफरेंट थिंकिंग आल्सो. इनकी जो सोच थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, इनका जो माइंडसेट था वो थोड़ा डिफरेंट था, राइट? टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो कि ओल्ड रिजीम को प्रेफर करते थे. ओल्ड रिजीम क्या था कि भाई जो एस्टेट्स थे, जो सोसाइटी डिवीजन था, जिसमें कि भाई किंग वाज ऑन द टॉप, देन द नोबिलिटी एंड क्लर्जी, एंड देन द बिजनेस क्लास, राइट? एंड इन द थर्ड एस्टेट there were 2 segregations, and the one who were part of the third estate, the 3 segregations were there, sorry, and the people who were part of the third estate, they had to pay taxes. तो ये कंजर्वेटिव्स उस चीज में बिलीव करते थे. पर फ्रेंच रेवोल्यूशन आने के बाद वो उन्हें ये समझ में आ गया कि भाई रेवोल्यूशंस जो हैं वो तब रेवोल्यूशन कब होती है? हमेशा तो रेवोल्यूशन नहीं करते हैं ना लोग. No, ma'am. When do people rebel? Ma'am, when they are feel like that they have means They have been cheated, right? cheated, or they have not been well treated. They have been means like treat like anything. Ma'am, when their needs have not been fulfilled. Yes. See, when people feel that they have been cheated, when they feel that what they are doing, they are not getting back the same thing. Third thing, sometimes when there is, inequality practiced with them. There are several reasons for which people rebel or for which people revolt. Like we read in the forest society, the forest people, especially the Bastar region, they rebelled because they did not like the
forest laws that were coming one after another by the British government, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जो कंजर्वेटिव्स थे Yes, वो ma'am. कंजर्वेटिव्स इस बात में विश्वास करते थे कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं लोगों को उनको मान के रखना चाहिए। मतलब ऐसा क्यों था? क्योंकि उन्हें पता था कंजर्वेटिव्स जो थे वो ये ऑटोक्रेसी को एरिस्टोक्रेसी को बिलोंग करते थे, ये नोबिलिटी और क्लर्जी वाले का पार्ट थे, और इन्हें पता था कि अगर अगर ट्रेडिशनल रिजीम को ट्रेडिशनल उसको प्रैक्टिस करेंगे तो इन लोगों की भी वही पोजीशन होगी जो कि उस टाइम पे हुआ करती थी। ठीक है, दे वर कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, रिस्पेक्टेबल, रिच पीपल। तो और रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? इनके सारे प्रिविलेजेस चले गए, इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली। ठीक है, तो 18th सेंचुरी जब थी तब इनका ये मानना था कि प्रिविलेजेस जो भी मतलब चेंज, जो भी आइडियाज जो कि चेंज को जो है वो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो उनको समझ में आया कि भाई चेंजेस जो है वो इनएविटेबल है, आप चेंजेस को रोक नहीं सकते हो। जो नेचर ऑफ लॉ है उसमें केवल चेंज इज परमानेंट, रेस्ट एवरीथिंग इज व्हाट? नॉट परमानेंट, राइट? एवरीथिंग चेंजेस, only change is one thing that is permanent, that has to take place, that has to be there, right? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो अब जब इन्होंने देखा कि भाई जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो इन्हें कुछ समझ में आया, तो इन्होंने कहा कि भाई सोसाइटी में चेंजेस तो जो है वो जरूरी हैं, पर ये जो चेंजेस हैं एकदम ड्रास्टिक नहीं होने चाहिए, ऑल ऑफ अ सडन नहीं होने चाहिए, धीरे धीरे होने चाहिए। ठीक है, तो अब आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, और ये ma'am. लोग हमेशा ये चाहते थे कि जो पास्ट है उसको रिस्पेक्ट किया जाए। रिस्पेक्ट क्यों किया जाए? क्योंकि पास्ट प्रैक्टिसेस में कंजर्वेटिव्स की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. ठीक है। अब लिबरल्स में जब हम आते हैं, जो लिबरल्स थे हमारे, लिबरल्स जो थे वो सोसाइटी में कंप्लीट चेंज लाना चाहते थे। ठीक है, उनको ये लगता था कि जो नेशन है, जो कंट्री है, कोई भी कंट्री XYZ, यूरोप की कोई भी कंट्री को आप ले लो या किसी भी कंट्री को ले लो, उनका ये मानना था कि जो है एक रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए। रिलीजियस टॉलरेंस मतलब ये नहीं है कि अगर एक ग्रुप ऑफ रिलीजन है कोई, तो केवल उसी को जो है कंसिडर किया जाए। जितने भी लोग हैं, जितने भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस वो करते हैं, या जितने भी डिफरेंट रिलीजन्स आर देयर इन वन कंट्री, उन सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इक्वल टॉलरेंस होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई क्रिश्चियन है तो हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे, या कोई जो है सिख है तो उसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे, या कोई और रिलीजन को अगर फॉलो करता है तो उसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका ये मानना था कि एवरी रिलीजन शुड बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, देयर शुड बी, द नेशन शुड हैव टॉलरेंस फॉर ऑल द रिलीजन। दिस मच इज क्लियर। Yes, Yes, ma'am. ma'am. फिर वो डायनेस्टी जो रूल था, Yes, ma'am. डायनेस्टिक रूल को ये बिल्कुल प्रेफर नहीं करते थे। डायनेस्टिक रूल मतलब भाई जो सक्सेशन में आते थे, राजा के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इनको ये इस चीज में विश्वास नहीं रखते थे। इनका ये मानना था कि एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि लोगों के द्वारा, रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन बाय द पीपल, एंड देन जुडिशरी जो है, मतलब जजमेंट देने का अधिकार जो है वो एक बॉडी को होना चाहिए, which should be given free hand to punish those who do not follow the law. ठीक है, then they did not believe in right to vote. उनको ये लगता था कि हर किसी को वोट करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, केवल जो पैसे वाले लोग होते हैं, रिच होते हैं, only they should be given the right to vote. और फिर women, they were completely against the right to vote for women. Women इनके लिए were not to be a subject of political right. उनको जो है वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए, उनका ऐसा मानना था। ठीक है, I hope this liberals is also clear and understood to all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Coming to the radicals, radicals ग्रुप जो था ये भी यूरोपियन सोसाइटी में उस टाइम पे प्रिविलेंट था, और ये जो ग्रुप था ये कंप्लीटली उस बात पे बिलीव करता था कि गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के द्वारा ही लानी चाहिए। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट है तो दैट गवर्नमेंट शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जो पॉपुलेशन है वो लोग चुने गवर्नमेंट को टू रूल ओवर
them. And these people, these radicals, those who were there, they completely believed in right to vote for women. मतलब वो right to vote पे विश्वास रखते थे. उनको लगता था कि हर इंसान को जो उस कंट्री का पार्ट है उसको जो है वोट देने का अधिकार होना चाहिए. बट वो एक चीज के कंप्लीटली अगेंस्ट थे. ये जो प्रिविलेजेस दी जाती थी लोगों को, उन प्रिविलेजेस के अगेंस्ट थे. उन्हें लगता था कि ये प्रिविलेजेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रिविलेजेस हैं उससे प्रॉब्लम्स आती हैं. क्यों? क्योंकि जो ओनरशिप है, जैसे जो लैंड ओनर्स हैं या जो इंडस्ट्रियल ओनर्स हैं, उस प्राइवेट ओनरशिप पे इनको बहुत ये लोग क्वेश्चन करते थे. वो कहते थे कि प्राइवेट ओनरशिप है, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, बोले, पर जो है ये कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए. अगर आप प्राइवेट ओनरशिप कहते हो तो इट शुड बी गिवन एक्सेस टू एवरीवन. ठीक है. उनको बस इस बात से तकलीफ थी कि कुछ गिने चुने लोगों के पास ही सारी पावर्स होती हैं, जिसकी वजह से बाकी लोग जो है रिसोर्सेज में लैक करते हैं. आई होप दिस मच इज क्लियर एंड अंडरस्टूड. Yes, ओके, Yes, ma'am. आई थिंक Yes, ma'am. इतना हमने पढ़ लिया था, Yes, ma'am. है ना. अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड दी सोशल चेंजेस. अभी जो हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं, जो आपके जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आए. ये जो थॉट ऑफ स्कूल्स थे जो कि प्रेवलेंट थे उस समय यूरोप में, उनके थॉट उन लोगों की वजह से भी काफी सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आए. अभी सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस क्या थे? सबसे पहला तो चेंज था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. आप देखो ऑल ओवर यूरोप जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, पर सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पे आया, किस कंट्री में आया? एनीबडी हु कैन टेल? सबसे पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस कंट्री में आया? मनोजस? Ma'am, I'm getting confused in three of them. No problems. Uh, Anybody in the class who could tell? Aryan Gupta? Yes, ma'am. सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ आया? France. नहीं, वो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन था. वहां तो क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति मैम, सबसे रशिया. वहां पर आई थी. हाँ, रशिया. ओह माय गॉड, नहीं बेटा, इट वाज Ma'am, इंग्लैंड. actually, I have, ma'am, three options. Ma'am, in I India? don't know that. I think, ma'am, In Dubai. ma'am in India. Ma'am. Ma'am in India. नहीं, ma'am, ma'am, Britain, ये तो कॉलोनी था ब्रिटेन का. अरे Ma'am, भाई, in United Kingdom. ma'am, No, no. Britain. ब्रिटेन. यस तनिष्का, वेरी गुड. इट वाज इन ब्रिटेन. इंग्लैंड में Ma'am, सबसे पहले तनिष्का? जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था. ठीक है. उसके बाद धीरे धीरे वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में स्प्रेड अप होते गया. आई होप दिस मच इज क्लियर. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. Yes. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से क्या हुआ? नए सिटीज एग्जिस्टेंस में आए. नए सिटीज एग्जिस्टेंस में आए, जिसकी वजह से और इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज जो है वो सेटअप हुए. और इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के सेटअप होने की वजह से और न्यू सिटीज के एग्जिस्टेंस की वजह से रेलवेज जो है वो एक्सपैंड होने लगी. आपने देखा होगा इंडिया में, अगर आपको याद हो तो इंडिया में भी क्या हुआ था, जो ब्रिटिश थे उन्होंने जब धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू करा तो उन्होंने सबसे पहले रेलवेज को एक्सपैंड करा. रेलवेज इंट्रोड्यूस करे और उसे एक्सपैंड करा. और उसके बाद रेलवेज को इतना एक्सपैंड करा कि उनका जो भी काम था, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था या मूवमेंट होते थे ऑफ द ट्रूप्स आर्मी के, वो सब उस रेलवेज के थ्रू ये लोग करते थे. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की, जब इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज आई तो उसकी वजह से क्या हुआ जानते हैं? What happened? Like, क्या हुआ था उसमें? No, ma'am. इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की वजह से क्या हुआ? मेन विमेन जितने भी थे और बच्चे, इन सब ने, ये सब लोग जो है काम करने लगे. ठीक है. और क्योंकि वर्कफोर्स बहुत ज्यादा हो गया था, वर्कफोर्स का मतलब काम करने वाले लोग ज्यादा थे, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज कम थी, तो वेजेस जो थे, जो इनको पैसे मिलते थे काम के एवज में, वो बहुत खराब थे.
बहुत अच्छी वेजेस इनको नहीं मिलती थी, ठीक है। और जो लिविंग कंडीशंस थी, क्योंकि ये सब लोग माइग्रेट करके आए थे गांव वगैरह से, कंट्री साइड से, विलेजेस से, तो इन लोगों को बहुत अच्छी लिविंग कंडीशंस भी नहीं मिल रही थी। दूसरा, क्योंकि डिमांड ऑफ गुड जो थी वो उस समय कम थी। भाई फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो बनी, शुरू में क्या हुआ, लोगों को समझ ही नहीं आया ये फैक्ट्री गुड क्या है या ये मशीन मेड गुड क्या है, तो उसकी डिमांड जो थी कंपैरेटिवली कम थी। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री ज्यादा थी, लोग काम करने वाले ज्यादा थे, पर डिमांड जो थी बहुत कम थी। तो इसलिए इन लोगों की ये जो गांव से जो लोग, कंट्री साइड से जो लोग माइग्रेट करके सिटीज में आए थे, या जो सिटीज में लोग थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया, ठीक है। यस मैम। अब इसकी वजह से क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द लिबरल्स एंड रेडिकल्स, अगर आप देखो तो जो लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे, ये जो थे प्रॉपर्टी ओनर्स थे, और ये लोगों को एम्प्लॉय करते थे इनटू इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, ठीक है। तो ये लोग जो थे, क्योंकि फैक्ट्री ओनर्स थे या प्रॉपर्टी ओनर्स थे, तो ये जो है प्रिविलेजेस ऑफ द ओल्ड ऑटोक्रेसी, मतलब कि पुराने उसकी राजा के टाइम पे जो प्रिविलेजेस थे कि भाई नोबेलिटी और क्लर्जी को जो है प्रेफरेंसेस दी जाएंगी, उनको फ्री लैंड मिलेगा, उनको हर चीज फ्री में दी जाएगी, तो इसके ये लोग कंप्लीटली अगेंस्ट थे। ये लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये सब चीजें जो है रहे, ठीक है। इतना क्लियर? यस मैम। दूसरा, कह रहा है कि इन लोगों का ये भी मानना था कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो होनी चाहिए। मतलब कि आपके पास अगर पैसा है या अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो दोनों लोगों को एम्प्लॉय करने की और लेबर करने की छूट होनी चाहिए। मतलब देयर शुड बी नो बाउंडेशन कि आपको हमारे साथ काम करना ही करना है या हम आपको जबरदस्ती काम करवाएंगे। मतलब दोनों कंडीशंस में ये था कि इंडिविजुअल की मर्जी से जो भी होगा वो काम, कोई किसी को प्रेशराइज नहीं करेगा कुछ भी करने के लिए। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। और दोनों को, मतलब दोज हु वर रिच एंड दोज हु वर नॉट रिच, दोनों को ग्रो करने की, डेवलप करने की, लेबर करने की फ्रीडम होनी चाहिए, ये ऐसा इन लोगों का मानना था, ठीक है। देन दे ऑल्सो वॉन्टेड दैट द रेवोल्यूशन शुड पुट एन एंड टू द मोनार्की, मतलब जो क्रांति है वो क्रांति जो है राजा के, मोनार्की को कंप्लीटली खत्म कर दे। जैसे फ्रांस में क्या हुआ था, रेवोल्यूशन के बाद जो है फ्रांस वाज डिक्लेयर एज अ रिपब्लिक, है ना। 1791 में फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आया, वहां पे लॉज बने, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ही वहां पे, यहाँ पे भी सब जगह पे ऐसा ही होना चाहिए कि मोनार्की जो है उसको कंप्लीटली खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। यस मैम। फिर नेशनलिस्ट जो थे वो आए और उन्होंने कहा कि भाई नेशन स्टेट्स होने चाहिए। नेशन स्टेट्स क्या है कि भाई जो लोग जिस कंट्री में रहते हैं वो उसका पार्ट होने चाहिए, और उसका पार्ट होने के लिए दे नीड टू बी गिवन सर्टेन राइट्स, इक्वल राइट्स। ऐसा नहीं है कि भाई हम सब लोग इंडिया को बिलोंग करते हैं, कुछ लोगों को सारे अधिकार हैं, कुछ लोगों को ये अधिकार है ही नहीं। इसीलिए जब इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट तो ये इंश्योर किया गया कि सब लोगों को एक जैसे डेमोक्रेटिक राइट्स मिले बिना किसी भेदभाव की। जैसे फ्रांस वगैरह में क्या था कि भाई किसी ने बोला रिच को मिलना चाहिए, यूरोपियन कंट्रीज में क्या था, किसी ने बोला कि रिच लोगों को जो है वोटिंग राइट्स होने चाहिए, किसी ने कहा कि भाई विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए, किसी ने कहा होने चाहिए। तो ऐसा कुछ भी जो है नहीं होना चाहिए। पीपल नेशनलिस्ट जो थे वो ऐसा मानते थे कि सबको बराबर के अधिकार होने चाहिए, और कंट्रीज जो है वो नेशन स्टेट्स होनी चाहिए, वो राजाओं के अधीन नहीं होनी चाहिए। पता चले कि एक पूरा देश है, आधा देश का पार्ट जो है कोई और किंगडम चला रही है, आधा देश का पार्ट कोई और चला रहा है। तो उनको लगता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मतलब इस सबका, अगर सब लोग उस कंट्री का पार्ट है तो एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि लोगों के कंसर्न से आए, और वो गवर्नमेंट या जो कंट्री है वो अपने सिटीजन्स को सारे वो राइट्स दे जो एक्चुअल में कंट्री अपने सिटीजन्स को देती है। आई होप दिस मच इज क्लियर एंड अंडरस्टूड। Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. अब इसी दौरान देखो, जब आप 10th में आओगे, आप पढ़ोगे किस तरीके से जर्मनी हुआ, इटली हुआ, ठीक है। आपका ये जर्मनी, इटली, फिर रशिया,
है ना। ये किस तरीके से रेवोल्यूशंस के बाद ये किस तरीके से ये सारी कंट्रीज जो हैं एक नेशन बन गई। पहले क्या था, इन कंट्रीज के अलग अलग पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग रूलर्स जो है वो रूल कर रहे थे। अगर हम इटली की बात करते हैं, इटली 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ठीक है, और सातों के सातों पार्ट्स जो थे वो अलग अलग रूलर्स के द्वारा जो है रूल किए जा रहे थे, किंग्स जो है अलग अलग थे। जर्मनी में भी ऐसा ही था। जर्मनी में 33 जो है फेडरेशंस थी, कॉन्फेडरेशंस थी, जिनको अलग अलग लोग कंट्रोल करे हुए थे। तो लोगों ने मतलब जो 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 रेवोल्यूशनरीज थे ना, या जो नेशनलिस्ट थे, उनका ये मानना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एक कंट्री है तो इट शुड बी अंडर वन कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि 10 लोग एक, मतलब 10 लोग एक ही पर्टिकुलर नेशन को जो है कंट्रोल करे पड़े हैं और अपने तरीके से जो है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपोज कर रहे हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. तो बहुत सारे रेवोल्यूशनरी, जैसे इंडिया की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इंडिया वाज अ कॉलोनी, भाई लोगों को अधिकार वो मिल ही नहीं रहे थे जो एक कंट्री के लोगों को मिलने चाहिए। तो क्या हुआ, इन लोगों ने रिवोल्ट करा, हमारे कंट्री में फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, रेवोल्यूशनरीज आए, उन्होंने रेवोल्यूशन लाया, तो लोगों को समझ में आया आजादी क्या है, क्यों हमें आजाद होना चाहिए, क्यों हमें किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। ठीक ऐसे ही बाकी जगहों पे भी, यूरोपियन कंट्रीज में भी many many revolutionaries came and they actually enlighten the minds of the people कि भाई उन लोगों को किसी एक, हमारी जो कंट्री है that should be a nation state and it should be run by the people, not by the rulers, right? Yes, ma'am. Okay, ma'am. चलिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कमिंग ऑफ द सोशलिज्म इन यूरोप। इतना आप लोगों को समझ में आया? Yes, ma'am. चलिए, Yes. Yes, ma'am. रीडिंग पार्ट हम बाद में कर लेंगे, पहले हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि बाय मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी सोशलिज्म जो था, हमने आपको बताया था सोशलिज्म क्या है, Yes, ma'am. बताया था ना। मैम तो ये लेकिन फिर से एक्सप्लेन कर Yes, ma'am. दीजिए। देखो बेटा, सोशलिज्म जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि जो लोग सोशलिज्म को फेवर करते हैं उनका ये मानना है, दे बिलीव इन इक्वालिटी, दे डोंट बिलीव इन हैविंग प्राइवेट प्रॉपर्टी, दे डोंट बिलीव इन इंडिविजुअल ओनरशिप, दे डोंट बिलीव इन पर्सनल गेन्स। उनका ये मानना है कि अगर सोशलिज्म प्रिवेल करता है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, हर किसी के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरा, जो इंडस्ट्रीज या जो फैक्ट्रीज है उनकी कोई इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लेबर्स वहां काम करती हैं, एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वो लेबर ही तो लेके आती है प्रॉफिट। तो जो लेबर्स हैं उनको भी कुछ अधिकार होने चाहिए, उनको भी कुछ कंट्रोल मिलना चाहिए इन दी ओनरशिप ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है। दूसरा, जो भी प्रॉफिट होता है टू द इंडस्ट्रियलिस्ट और द एंटरप्रेन्योर्स, वो प्रॉफिट जो है इट शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द लेबर्स। जो जितने भी जो लेबर क्लास है या जो कामगार है, उनको ये सारा प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से प्रॉफिट मिल रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट को। इंडस्ट्री थोड़ी काम कर रहा है, जिसने पैसा लगाया, जिसने इंडस्ट्री खड़ी करी, वो थोड़ी काम कर रहा है। काम कौन कर रहा है? लेबर कर रही है। तो जो लेबर काम कर रही है उसको पैसे, उसको जो है प्रॉफिट मिलना चाहिए, अगर सारा नहीं तो कुछ परसेंट ऑफ द प्रॉफिट दैट द इंडस्ट्रियलिस्ट इज गेनिंग, उसका कुछ पार्ट जो है वो आपका लेबर्स को भी मिलना चाहिए। इतना समझ में आया? यस मैम। चलिए, तो बाय मिड ऑफ 19th सेंचुरी सोशलिज्म का जो आइडिया था वो इतना ज्यादा यूरोप में फ्लरिश करने लगा कि उनकी डिमांड हो गई कि भाई सोसाइटी एज अ होल शुड कंट्रोल दी प्रॉपर्टी। मतलब जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी किसी के पास कुछ भी है, तो वो सोसाइटी एज अ होल कंट्रोल करे, कोई अकेला इंडिविजुअल ना करे, और सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं वो सब उसको करें। दूसरा, लोगों का जो वेलफेयर है वो मेन काम होना चाहिए कंट्री का या इंडस्ट्रीज का। जो भी लोग हैं, जो भी कंट्री है, जो भी सोसाइटी है, उसमें सब लोगों का वेलफेयर शुड बी द मेन एम ऑफ द पीपल, ठीक है। और जो भी गेन है इट शुड बी अ कलेक्टिव गेन। ऐसा नहीं है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके पास तो सारा प्रॉफिट चला गया, वो तो एंजॉय कर रहा है, खूब ऐश कर रहा है, और बाकी जो लोग काम करके दे रहे हैं उसको, वो जो है बदहाली में जी रहे हैं, ठीक है। यस मैम। Excuse me, ma'am. यस मनोजस। Ma'am, Kumar. मैम इट्स पार्थ। अच्छा पार्थ, सॉरी। हाँ Ma'am, पार्थ। yes. Ma'am, I was saying that, ma'am, as you said that everyone, like the labor should get some amount of percentage that for good health and the like equality.
So हाँ. ma'am, but then now also, ma'am, there are some people, or most of the factories and industries where laborers are not getting good like वो बात सही है, equality also. वो बात सही है, पर पार्थ आप अगर ये देखो तो उस टाइम का जो सोसाइटी थी या यूरोप में उस टाइम पे जो कंडीशन थी लेबर्स की, वो आज की तरह नहीं थी. आज की डेट में लेबर लॉज हैं, ठीक है, लेबर कोर्ट्स हैं, जहां पे Yes, अगर ma'am. किसी के साथ इंजस्टिस होता है या किसी का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो वो जाके वहां कंप्लेन कर सकता है, ठीक है. पर उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था बेटा. आपको पता है लोग 16-16, 18-18 घंटे काम करते थे और उस काम करने के एवज में उन्हें बहुत कम मिनिमम अमाउंट मिलता था, तो विच वाज नॉट करेक्ट. ये सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ये इसीलिए आया क्योंकि लोगों ने देखा, ये जो थिंकर्स थे, ये जो फिलोसोफर्स थे, इन्होंने देखा कि किस तरीके से इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है कि कोई तो बहुत ही, किसी के पास तो सब कुछ है और किसी के पास कुछ भी नहीं है. प्लस कुछ लोग गरीबी और बीमारी की वजह से मर रहे हैं, ज्यादा काम करने की वजह से मर रहे हैं. वर्किंग क्राइटेरिया कुछ है ही नहीं सेट, कोई लॉज नहीं है, कोई किसी चीज, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो उनको लगता था कि भाई ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो कुछ सेट नॉर्म्स होने चाहिए जिसके तहत जो है लोग काम करें. जैसे अगर आप देखो आज की डेट में, आप कुछ किसी भी सेक्टर को उठा के देखो, आप देखोगे कि हर सेक्टर में कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको फॉलो किया जाता है, उनके उनके अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है. इजंट इट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना. तो ये सब चीजें पहले नहीं थी, तो उनका ये जो उनकी जो ये मानना था या जो उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस था, ये इसीलिए आया क्योंकि उस टाइम पे पीपल वर स्ट्रगलिंग, पीपल वर सफरिंग अ लॉट, ठीक है. और Okay, बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी ये जो आइडियाज थे सोशलिज्म के, ये इतना ज्यादा स्प्रेड अप कर गए कि सोशलिज्म को इतना गेन मिल गया कि जो सोशलिस्ट थे उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनका जो मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. और क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि उनको लगता था ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये हर बुराई का जो है मेन कॉज है, रूट कॉज है. इट इज द रूट ऑफ ऑल द इविल्स. आप देखो इंसान पैसे के लिए क्या क्या नहीं कर जाता, तो ये कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट ओनरशिप ही है जो कि इस तरीके से लोगों को गलत काम करने के लिए उकसाती है, ठीक है. फिर Yes. जो प्राइवेट ओनरशिप है उसमें लोग क्या करते हैं, अपने अपने सेल्फिश गेन्स के लिए लोगों को जॉब देते हैं. इसलिए नहीं देते हैं कि वो नीडी है, वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनको उनकी दरकार होती है. और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है, जब उनकी नीड खत्म हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, उनको हटा देते हैं. तो वो कहीं से कहीं भी जो है बहुत Yes, ma'am. ज्यादा, हाँ, कहीं से कहीं भी जो है सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं, वो अपने अपने सेल्फिश मोटिव्स को जो है वो फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद Yes, ma'am. और जो इनका जो कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट है वो नील था. मतलब इनका मकसद सिर्फ ये था कि भाई किसी भी तरीके से प्रॉफिट ये लोग गेन कर ले और अपने पास सब कुछ रखे, किसी को कुछ ना दे. जानते हैं उस टाइम पे मजदूरों की जो कंडीशन हुआ करती थी, इतनी खराब हुआ करती थी, रहने की जगह नहीं होती थी, बीमार हो जाते थे. क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्री सेटअप हुई, तो पोल्यूशन का परसेंटेज भी बढ़ा, तो लोग सफोकेशन में जी रहे हैं, डॉक्टर्स वगैरह की कोई फैसिलिटी नहीं है उनके पास. अगर बीमार हुआ कोई तो वो जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो कहते हैं अच्छा ठीक है अपने खर्चे पे लेके जाओ. आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है. आज की डेट में जो फैक्ट्री ओनर्स हैं या जो फैक्ट्रीज हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं, उनमें वो ये इंश्योर करते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल एड सबको दी जाए, क्या वर्कर क्या ऑफिसर, ठीक है, ठीक है. Okay, ma'am. तो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे. इसमें थोड़ा सा चीजें और Thank you, ma'am. हाँ, थोड़ी सी चीजें और बच गई हैं, बट वी हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट, सो आई वोंट बी एबल टू कवर दैट. हाँ, बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. टिल देन कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस. Thank you, ma'am. आई थिंक Thank you, Thank you. ma'am. आप लोगों की क्लास, आप लोगों के टेस्ट भी शुरू, ड्यूटीज, ठीक है. Ma'am, test by meeting होंगे? हाँ हाँ, ऑनलाइन होंगे बेटा, इन्हीं में होंगे, गूगल मीट वगैरह पे होंगे, ठीक है. Okay, ma'am. Okay, ma'am. थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर द सेशन. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके बेटा, ओके बच्चे. गॉड ब्लेस यू ऑल. हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू.